Hello class here. Again your science teacher welcome all of you in online classes of your school. Class, from today onwards I am going to start explanation of next chapter, that is chapter number 3 of your book. Of course we have completed essay type question, short answer type question, very short answer type question and book exercise of chapter 2 microorganism, friend and foe. Now next chapter in your book is materials in daily life, synthetic fiber and plastic. This is your next chapter. Your today's homework is note down the word meanings of this chapter. Note down the word meanings given here. These are word meanings of this chapter. Note down these word meanings in your CW copy. अच्छा एक बात और बता दें, चैप्टर 3 comes in साइंस फर्स्ट, नॉट इन साइंस सेकेंड. ठीक है, इससे पहले का चैप्टर 1 चैप्टर 2 साइंस सेकेंड में था. बहुत आप लोग पूछते हो मोबाइल पे मैसेज डाल के, सर फर्स्ट में सेकेंड में क्लियर कर दे रहे हैं. हाँ, मटेरियल्स इन डेली लाइफ, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक. पहला क्वेश्चन आप लोगों से, व्हाट इज़ फाइबर? व्हाट इज़ फाइबर? लेट अस recap your mind, our mind, that fiber is a substance. आपकी बुक में जो लिखा हुआ वही पढ़ दे रहे हैं. लिखा हुआ है a fiber generally is a strand of substance. Fiber is generally a strand of substance. Many fibers are twisted to form yarn and many yarn are twisted to form threads. और फिर इसी थ्रेड से या तो वीविंग करके या तो निटिंग करके फैब्रिक बनाया जाता है. ठीक है, ये तो फाइबर के बारे में था. इस चैप्टर में हमको फाइबर के बारे में क्यों पढ़ना है? बिकॉज वी आर यूजिंग फैब्रिक्स in our day-to-day life. Because of this reason threads are very important, fibers are very important, and these fibers are of two types: natural fibers and man-made fibers. Man-made fibers are also known as synthetic fibers. Natural fibers are of two types: animal fiber and plant fiber. Example of animal fiber is wool, silk. These are example of animal fiber. And plant fiber का example cotton, jute. These are cotton, jute. एक और याद आ रहा है, नारियल. ठीक है, तो these are examples of plant fibers. Clear? Now, nowadays, at present days, synthetic fibers are in fashion. Day by day, we are moving towards synthetic fibers, synthetic fabrics. Why? Because there are some advantages of synthetic fiber over natural fibers. What are these advantages? First of all, I want to tell you a few names of synthetic fibers. Like rayon is a synthetic fiber, man-made fiber, but it is made up from natural cellulose. Of course, as you know that cellulose is a material present in cell wall of plant cell. ठीक है, तो from this cellulose rayon is made. मैन मेड तो है लेकिन फिर भी नेचुरल चीज से बना हुआ है. Whereas nylon and polyester are totally synthetic fabrics, synthetic fibers. ठीक है, out of these nylon is made up of coal, water and air. These three things are combined to form nylon. क्या एडवांटेजेस हैं सबसे पहले जान लेते हैं कि why we prefer synthetic fiber, man-made fiber at the place of natural fiber. Why we prefer? Number one, synthetic fiber have more strength and elasticity. Synthetic fibers have more strength and elasticity. First thing, ज़्यादा strength होती है इसकी. They absorb little water. Synthetic fiber used to absorb very little water.
बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे आर हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ ड्रिप ड्राई। इसको ड्रिप ड्राई कहते हैं, सूखने में समय नहीं लगता सिंथेटिक फाइबर्स को। नेचुरल फाइबर्स को बहुत टाइम लगता है सूखने में, ये भी एक क्वालिटी है। दे आर स्मूथ, सिंथेटिक फाइबर्स आर स्मूथ एंड ऑफ लाइट वेट, बहुत हल्के होते हैं, जल्दी साफ भी हो जाते हैं, ठीक है। दे रिटेन शार्प कलर फॉर लॉन्गर टाइम, बहुत शार्प, बहुत डार्क कलर का अगर आप ले लीजिए सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फैब्रिक, तो वही डार्क कलर उसका मेंटेन रहेगा बहुत दिन तक, जबकि नेचुरल फाइबर का अगर वो क्लोथ है मेंटेन नहीं रहेगा, हल्का हो जाएगा, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी जो हमने बनाई है अपने मन से, ड्यूरेबल एंड इकोनॉमिक, ज़्यादा चलते हैं, टिकाऊ होते हैं, ड्यूरेबल एंड इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब सस्ते होते हैं, महंगे नहीं होते, आपके पर्स के हिसाब से होते हैं, ठीक है। एक टॉपिक और दिया हुआ आपके, तो बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स वी शुड स्टडी अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स, बिकॉज सिंथेटिक फाइबर्स हैव मैनी एडवांटेजेस ओवर नेचुरल फाइबर्स। क्लियर। एक हेडिंग दी हुई है आपकी बुक में, मोनोमर एंड पॉलीमर। कोई भी यूनिट है, सिंगल यूनिट है, मान लेते हैं ऐसे बीड है, माला बनती है, मोती की पर्ल की माला बनती है, उसका एक बीड है, एक दाना है यहाँ पे, तो मोनो का मतलब होता है एक, तो मोनोमर का मतलब हुआ किसी चीज़ का सिंगल बीड, सिंगल यूनिट, मोनोमर। पॉली का मतलब होता है कई, यही जब कई मिल जाए ऐसे ऐसे तब इसको कहेंगे पॉलीमर। अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि repeating units repeat the same unit is known as polymer and single unit is known as monomer, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, जो ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनमें क्या होता है, रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं। मोनोमर्स आपकी बुक में लिखा हुआ है, पॉलीमर्स आर द जाइंट मॉलिक्यूल्स विच आर मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। आपकी बुक में ये बीड माला का डायग्राम भी बनाया हुआ है यहाँ पे, यही पॉलीमर और मोनोमर को समझने के लिए बेस्ट आइडिया है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर में सिल्क की बात सबसे पहले लिखी हुई है, तो सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। सबसे पहले ये जान लीजिए कि सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कीमती था, ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया, सिंथेटिक बनाया गया सिल्क, और उस सिंथेटिक सिल्क का नाम है रेयॉन। रेयॉन रेयॉन इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क एंड रेयॉन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, प्लांट सेलुलोज, ठीक है। तो वुड, कॉटन वेस्ट एक्सेट्रा, केमिकली रेयॉन फाइबर इज आइडेंटिकल टू कॉटन और सेलुलोज। रेयॉन शाइन्स लाइक सिल्क एंड फॉर दिस रीजन रेयॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क। इसका फंक्शन क्या है, यूज़ क्या है, हाईली एब्जॉर्बेंट, इट इज़ यूज टू मेक गॉज। गॉज समझते हैं, वो बैंडेज बांधने के लिए गॉज का यूज होता है, वुंड को साफ करने के लिए। टू कवरिंग वुंड एंड अदर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, इनको, और इसका यूज़ पढ़ के आज का ऑनलाइन क्लास ओवर कर रहे हैं। सेकेंड यूज इसका लिखा हुआ है, रेयॉन बीइंग स्ट्रॉन्ग इज़ यूज फॉर मेकिंग कारपेट, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी होती है। ब्लेंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ रेयॉन मेक इट यूजफुल फॉर मेकिंग aprons and caps, और softness, shining and absorbing property of rayon make it much suitable in textile industry. These are various uses of rayon. Now after rayon in your book nylon is written. About nylon we will study in next online class. Nylon is made up of cold water and air. This is all for today, students. Do your homework in time. Stay home and be safe. Thank you, class.